जल्द ही हम वुमेन को भी इंडियन एयरफोर्स में लाएंगे। लॉन्ग पेंडिंग रिक्वायरमेंट है। ये एक सुनहरा मौका है जिससे कि हम क्रॉस डोमेन यूटिलाइजेशन कर सकते हैं लोगों की। यूज अ ड्यूल यूज ट्रेनिंग विच इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस, एट द सेम टाइम ऑल्सो यूजफुल इन द सिविल डोमेन। जो पूरी फेज़ 1 फेज़ 2 मेडिकल है, ये एक वेल established procedure है। So today we have been joined by a person who has been touching the sky with glory from last 38 years. He has flown various fighter and trainer aircrafts, and presently he is the air in charge personnel, Air Marshal Suraj Kumar Jha with us. Sir, starting with again on 14th of June, a transformative reform came in armed forces known as Agniveers scheme. I want to particularly talk about the post avenues of Agniveers. What will be their future after the 4 years, and if they'll be sent back to the society, what are the avenues you want to tell us that they'll be involved in? In the Air Force, we have decided to call our Agniveer as Agniveer Vayu. Air Force is one arm of the armed forces that covers a very wide spectrum. You know, we have the cutting edge technology aircraft. We also operate in radars, in the missile systems. We also have our own accounting branch. We have logistics. We have operational support branches. So it covers a very wide range of people. This also implies that the Agniveer Vayu, who will be deployed in their field of work, will gain different kind of expertise based on their initial entry-level qualification and also their other skills that we will map and examine. They will be allotted their field of work. And in their respective field of work, we will progressively keep taking them to a higher level, aligned at all times with our requirement as well as that of the civil sector. Just to give an example, let's say somebody gets a logistics, supply chain management, the warehouse management, storage of perishable, non-perishable items, storage of high-value items, the receipt and dispatch, packaging. You know, now we have the most modern technology of packaging where very fragile or very highly sensitive items have to be transported from one place to another, and that requires a special kind of packaging. All these training will be imparted. And just imagine somebody with this kind of training and with nationally recognized credit and certificates would be somebody most wanted in the logistics domain. The same will happen to the accounts guy, the same, those who get to work on the aircraft. We will align them to the requirements of the industry, to the requirements of MRO sector, to the requirements of airline industry, because each one of them also maintain aircraft and we also maintain aircraft. Okay, so that is our plan. It's a work in progress. Various teams are at this moment talking to different agencies as to how to align our requirements with their requirements, and we are implementing a dual use training concept. Like you have heard about the dual use equipment, which can be used both in military and civil. So we will use a dual use training, which is extremely useful to us, at the same time also useful in the civil domain. Sir, as you have talked about, there are many sophisticated technology is present right now in the modern Indian Air Force. Sir, again, the training period of Agniveers is 6 months, and after 6 months they'll be deployed in various stations. They'll be in 3.5 OJT, that is on the job training. How you are planning to equip Agniveer with all this modern technology, and what will be the process of their training? Very good question. You know, there seems to be a misconception or misperception that the training finishes at 6 months. That's not true. The 6 months is the initial training. We are following it up with a 2 to 4 week training on his field of work. And depending upon the uptake of an individual and his initiative,
Every 6 months to 1 year, he will have the next higher level training module available to him, which we intend to conduct through a hybrid module, which is online plus offline and some hands-on experience, which means we are progressively taking him to higher skill grade, and this shall continue at least up to 3.5 to quarter to 4 years. सर अभी नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द 24th जुलाई में स्टार एग्ज़ाम है, दैट इज़ शेड्यूल एयरमैन रिक्रूटमेंट। उससे रिलेटेड आप अगर कुछ बता पाएँ, कितना क्या प्रोसेस होगा, जो कैंडिडेट्स हैं जो सीख कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में आने के लिए, कैसे वो प्रिपेयर करें और कैसे उनका ये पूरा प्रोसेस में वो इनरोल कर सकते हैं? देखिए, जो हमारा स्टार एग्ज़ाम या जो पूरी फेज़ 1 फेज़ 2 मेडिकल है, ये एक वेल स्टैब्लिश प्रोसीजर है। इसके विषय में बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पब्लिक ओपन डोमेन पे, और हमारी जो अपनी साइट्स हैं उस पर भी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 3 तरह के एग्ज़ाम होंगे एक साथ, 3 कैटेगरी के, डिपेंडिंग अपॉन जो एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन है। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, जिन्होंने मैथ्स फिज़िक्स और इंग्लिश लिया हुआ है, उनके लिए एक साइंस सब्जेक्ट्स वाला पेपर है जिसमें मैथ्स है, फिज़िक्स है और इंग्लिश है। जिन्होंने साइंस नहीं लिया है उनके लिए एक अदर देन साइंस कैटेगरी का क्वेश्चन पेपर है जिसमें इंग्लिश है और रीजनिंग, एनालिसिस, जनरल अवेयरनेस की पेपर है। और कुछ हैं जो दोनों अटेम्प्ट करेंगे अपनी मर्ज़ी से, और ये चॉइस उनको दिया जाएगा अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में। तो वो साइंस प्लस अदर देन साइंस, मतलब सारे पेपर्स अप्लाई करेंगे। सर अगेन जो एक कंसर्न ये भी रेस किया जा रहा है कि आफ्टर 4 years जो रेगुलर कार्डर होगा उसके लिए कैसे इंडक्शन प्रोसेस होगा, कैसे इसमें जो वायबिलिटी होगी, या फिर ये जो प्रोसेस है अगर इसके बारे में थोड़ा आप बता पाएँ कि कैसे थ्रू आउट, अगर वो 4 साल हैं, कैसे एनालाइज किए जाएंगे वो? देखिए, ये 3 जगह है जहां उसको एकदम टोटल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। पहला तो एंट्री लेवल, जिसके बेसिस पे हमने उसका चयन किया है। दूसरा 6 महीने जब सब एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके एंड में जो हम एक परीक्षा लेंगे वो। और तीसरा 3.5 से 4 साल के बीच में एक हम और टेस्टिंग करेंगे कि अभी तक भाई 3.5-4 साल में आपने क्या सीखा है, और ये भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। इसके अलावा उसके 3 एनुअल रिपोर्ट्स रेज होंगे हर साल, जो हमारा प्रोसीजर है। हर 3 महीने पे उसका एक फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा, सालाना मेडिकल टेस्ट होता है। उसने अपने जो क्रेडिट ग्रांटिंग कोर्सेज़ हैं, जिसके विषय में मैंने अभी से थोड़ी देर पहले बताया, उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही है, डिसिप्लिन कैसा रहा है, जो जितनी बार वो रेंज पे गया है फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, या जब भी वो गार्ड ड्यूटी पे रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है। हम एयरफोर्स में भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क्ड सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जो हम अपने एयरमैन ऑफिसर्स सबके लिए यूज़ करते हैं। उसी नेटवर्क का इस्तेमाल हम करेंगे अपने अग्निवीर वायु के लिए भी। तो आप समझ सकते हैं कि हम उसको सिखा भी रहे हैं, उसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, इनकरेज भी कर रहे हैं, मेंटरशिप भी कर रहे हैं, और साथ साथ हम भी उसको परख रहे हैं कि हमारे लिए मोस्ट सूटेबल कौन है। सर एक क्वेश्चन ये भी था कि इंडियन एयरफोर्स क्या विमेन अग्निवीर को इस बार इंडक्ट करेगा कि नहीं? और सर एक चीज़ ये थी कि जैसे इंट्रोड्यूस हुआ है रिक्रूटमेंट स्कीम, कैसे जो इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम है, पर्टिकुलरली IAF, इनमें जब वो एंट्री होगी अग्निवीर्स की, कैसे वो आगे ले जाएगा? हम बात कर रहे हैं कि यंग प्रोफाइल होगी, हम बात कर रहे हैं टेक सेवी होंगे, फ्यूचर रेडी प्रिपेयर्ड आर्म फोर्सेस होंगी। ये आप कैसे देखते हैं कि ये शेप जब करेंगे? हम बात कर रहे हैं 2030 की। कल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने भी बोला था कि वी विल हैव 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25। कैसे इसको हम कैपिटलाइज करेंगे सर? पहले मैं वुमेन का मुद्दा ले लूँ। महिलाओं को हम भी लेंगे, लेकिन इस पहले बैच में नहीं ले रहे हैं। इस पे एक स्टडी टीम बैठी हुई है पिछले 7-8 महीने से, उनकी रिपोर्ट आने ही वाली है कुछ दिनों में।
उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे हम देखेंगे कि हम तैयार हैं या नहीं, कहाँ कहाँ पे इनका इस्तेमाल हो सकता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने इसके विषय में अपना एक्सेप्टेंस इन प्रिंसिपल दे दिया है, तो हमें आशा है कि आने वाले समय में जल्द ही हम वुमेन को भी इंडियन एयरफोर्स में लाएंगे। पहले साल तो हम सिर्फ 3,000 ले रहे हैं। 3,000 हमारे पूरे स्ट्रेंथ का सिर्फ 2%, ओके। और 4 साल के बाद ये बढ़ के 10% हो जाएगा। और हमारे केस में ये 50-50 कभी नहीं होगा। इसका एक कारण है, आर्मी में लोग 15 साल के बाद चले जाते थे काफ़ी लोग, और नेवी में भी। हमारे केस में ये पहले से ही 20 साल था मिनिमम इंगेजमेंट पीरियड, जिसको हम आरई बोलते हैं। और हमारे में ये भी सुविधा थी एयरफोर्स में कि जिनको प्रमोशन नहीं मिला है वो एक्सटेंशन लेके अपने 57 साल तक काम कर सकते हैं। तो चूँकि हमें एयरफोर्स में खास के एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है, मेंटोरशिप की, इंस्ट्रक्टर्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो हमारे पास, और शायद आर्मी की तरह हमारे हर सीनियर को फिज़िकल उतना नहीं करना पड़ता है मेहनत, तो हमारी 25 से 30% स्ट्रेंथ होगी अग्निवीर वायु की, और बाकी हमारे पास जो अग्निवीर से रेगुलर में कन्वर्ट हो गए हैं या जो हमारे एग्जिस्टिंग एयर वॉरियर्स, एयरमैन हैं, उनकी संख्या होगी। तो इससे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्टिमम मिश्रण है यूथ का और एक्सपीरियंस का। दोनों चीज़ों की हमें भारतीय वायुसेना में ज़रूरत है। जो प्रोसेस था इसका, उस पर भी काफ़ी चीज़ आई थी कि ओके द प्रोसेस इज अगेन, एनएसए ने कल बोला इट इज़ नॉट अ नी जर्क। इस पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। कमिटीज़ की बात करें, कारगिल रिव्यू कमेटी, अरुण सिंह कमेटी है। 1989 में अ पेपर वॉज रिलीज कि हमें कम करनी है प्रोफाइल जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं। ये कैसा स्टेप है उसकी तरफ, एक हम बोलेंगे अग्निपथ इज़ अ लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म दैट इज़ नाउ करेंटली इन प्रोसेस। तो इस चीज़ पे आप क्या बोलना चाहेंगे सर? एकदम सही है जो एनएसए ने कल कहा, या जो इससे पहले और भी प्रोनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं कि एक लॉन्ग पेंडिंग रिक्वायरमेंट है। ये एक सुनहरा मौका है जिससे कि हम क्रॉस डोमेन यूटिलाइजेशन कर सकते हैं लोगों की, जो पहले अलग अलग ट्रेड्स में बांट दिया जाता था और अक्सर वायु सैनिक अपना उसी ट्रेड में ज़्यादा प्रोफिशिएंट रहते थे और बाकी काम दूसरों पे छोड़ा जाता था। अब वो नहीं होगा। अब क्योंकि देखिए, पीस टाइम ऑपरेशंस और लड़ाई के टाइम का ऑपरेशंस बहुत अलग होता है। लड़ाई के टाइम में ऑल हैंड्स ऑन डेक जैसे नेवी कहती हैं, वही हमें भी रिक्वायरमेंट है। तो ये ज़रूरी है कि इवेंचुअली हमारी पूरी इंडियन एयरफोर्स कुछ कुछ एसेंशियल एक्टिविटीज़ से में एक्सपीरियंस्ड हो, उसकी ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग दी गई हो। तो उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, अगर 4 साल तक एक यंग आदमी एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट में ग्रो होता है, तो उसका कैरेक्टर बदल जाता है। वो ज़िंदगी भर उसी तरह के हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट में खुशी खुशी से मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल वो रहेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि ये मेरे एयरफोर्स के लिए, हमारे एयरफोर्स के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो।